Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. For the last 13 years, we have been taking coaching for JEE as well as NEET and board exams, home exams, NTSC, Olympiads with wonderful results. So, would you like to know what is the reason behind this wonderful result? That is, we have been getting very disciplined and obedient children whose mentorship was done by us and they came out with flying colors. Now they are working in so many different companies, big hospitals, and we feel proud to say they have been students of our academy. So children, as I have been talking that 11th is a bit difficult, but nothing like difficult when you do things with proper planning, try to understand, try to implement the concepts. So here in the first chapter, which is about some basic concepts of chemistry, we have discussed quite a number of topics, and I do hope that you have liked all the videos, you have subscribed to the channel, so that we are able to give you more and more material with regards to our video lectures. So significant figures, I think it is clear with everybody. Then we did about laws of chemical combinations. We did about Avogadro's law. We did about Gay-Lussac's law. And then we started with a very interesting topic where I say we should be in a position so that we are able to play with that, with the questions of mole concept. So mole concept में चार चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैंने कल आपको बताया था. वो क्या है कि 1 mole of any substance contains Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23 atoms or molecules or ions. इसके साथ आपको याद रखना है कि 1 mole में हमेशा जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अगर वो मॉलिक्यूल है. और थर्ड चीज़ जो आपको याद रखनी है, अगर गैस के लिए है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स. इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स. ये चार चीज़ें, ये अगर आपने इनको समझ लिया तो very easily we can do the questions. So let us come to the first question. अभी मोल कंसेप्ट में हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. So with all excitement, with all enthusiasm, keep on watching these lectures and keep on solving number of questions. तो first question है, calculate the mass of an atom of silver. अगर एक एटम का मास लेना है तो आपको पता है कि इसका रिलेशन किससे होता है कि एवोगेड्रो नंबर is equal to atomic mass. तो Avogadro number means 6.022 into 10 to the power 23 atoms के लिए अगर मास, सिल्वर का मास होता है 108, इसका मास है 108 ग्राम्स, तो 1 एटम के लिए कितना मास होगा? इट इज़ 108 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.793 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 माइनस 23 होगा ये. दिस शुड बी माइनस 23. सो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1.793 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम्स. ये होगा 1 एटम का मास. तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको देखना है दैट इज, सब बोर्ड की तरफ देखोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन. जो भी गिवन है उसको आप स्पेसिफिकली आप लिखो 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन. जब आपने ये लिखा तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 22.4 लीटर्स का रिलेशन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन.
तो ये यहाँ पे दिया है 11.2, मतलब जस्ट हाफ है। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम्स, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, O2, लेकिन और O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगेड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इसमें एटम्स कितने होंगे, क्योंकि O2 है, सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। इन दो चीज़ों से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर्स, तो आपको पता है कि 22.4 लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं, यस चिल्ड्रन, 6.022 × 10⁻23। सो 11.2 लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 अपॉन 22.4 × 11.2, तो जस्ट इसके हाफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स ये हो जाएगा 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, उसमें आपको ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ एटम्स इस सेम कंडीशन में आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हो कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटू 2 कर दिया तो एटम्स हो गए, या आप दोबारा से रिलेशन उसको लिख सकते हो जब तक आप बहुत ही क्लियर नहीं हो जाओ। सो 22.4 लीटर्स में कितने एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 × 2, सो 11.2 लीटर्स में कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 × 2 अपॉन 22.4 × 11.2, और ये आ जाएगा 6.02 × 10⁻23 एटम्स। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, O2 मॉलिक्यूल एंड एटम्स। एटम्स कितने होंगे, 2 × एवोगेड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जस्ट डायरेक्टली एवोगेड्रो नंबर। सो नोट कर लिया सबने ये वाला क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। Mass of 94.5 milliliter of a gas at STP, ये है 94.5 milliliters of a gas at STP, इसका मास कितना है 0.2231। मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास मतलब आपको निकालना है वो मास जो 22.4 लीटर्स में प्रेजेंट होगा। तो वो रिलेशन है 22.4 लीटर्स, यहाँ पे दिया है 94.5 मिलीलीटर्स, तो इसको भी आप मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लो। सो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 22400 मिलीलीटर्स हो गए, या ये लीटर्स में है तो इसको भी आप लीटर्स में कन्वर्ट कर लो, यूनिट सेम होना चाहिए। सो आप लिखोगे कि 94.5 मिलीलीटर्स में गैस का मास है 0.2231 ग्राम्स। सो 22400 मिलीलीटर के लिए कितना मास होगा, 94.5 × 22400, राइट। जब ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 52.9। सो दिस विल गिव यू द मोलिकुलर मास। मतलब सारे इस क्वेश्चन में किसका रिलेशन लेना है, वॉल्यूम एंड मास, कंसिडरिंग 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, कंसिडरिंग volume occupied by 1 mole of a gas at STP is 22.4 liters. अब
नेक्स्ट वाले पार्ट पे आएंगे हम 4th क्वेश्चन पे। कैलकुलेट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर को हमको लेना है कि वो स्फेरिकल ड्रॉप है और हमको निकालना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब 1 मॉलिक्यूल के लिए मास कितना होगा पहले आप वो कैलकुलेट करो। मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा। सो एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर वाटर में एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका मास होता है 18। अगर उसमें वाटर में 1 मॉलिक्यूल है तो इसका मास होगा 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स। ये आ गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मीन्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो सेम 18 अपॉन दिस, यही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। डेंसिटी 1 है इसलिए उसको मेंशन नहीं किया है। सो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम कितना आएगा, यू विल गेट द वॉल्यूम एज 2.99 इंटू 10 टू द पावर -23। मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी उसका वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम होगा ये है मिलीलीटर्स में। सो ये हो जाएगा दिस मच मिलीलीटर्स। फिर नेक्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को स्फेरिकल लिया, मीन्स इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब इसमें वॉल्यूम हमके पता है, रेडियस हमको कैलकुलेट करना है। इस रिलेशनशिप से रेडियस कैलकुलेट करना है। सो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास आया है 2.99 इंटू 10 टू द पावर -23 मिलीलीटर्स। ये इसके इक्वल है। सो आर क्यूब कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.99 इंटू 10 टू द पावर -23 अपॉन 4 इंटू 3.14। ये आर क्यूब हो गया। उसका जब आप क्यूब रूट लोगे तो वैल्यू ऑफ आर आएगी और वो होगा 1.923 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर्स। ठीक है। सो इस तरह से हमको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करने होते हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट के, एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. So you have to keep watching these video lectures in sequence so that all your concepts are very, very clear. So till then, thank you so much.